નમસ્તે, હું મિત્તલ કોટીચા શાહ, જોઈન્ટ એક્ઝિક્યુટિવ ટ્રસ્ટી, પ્રોજેક્ટ લાઈફ અને વાઇસ ચેરપર્સન ઓફ ઇન્ડિયન યોગ એસોસિએશન ગુજરાત ચેપ્ટર આપ સર્વને આંતરરાષ્ટ્રીય ડે નિમિત્તે શુભેચ્છા પાઠવું છું અને આશા રાખું છું કે આપના અને આપના પરિવારનું જીવન સ્વસ્થ્ય અને તંદુરસ્તમય રહે. મિત્રો, આપ સર્વે જાણો છો કે આપણે છેલ્લા 1.5 વર્ષથી કોરોના મહામારી સામે લડી રહ્યા છે અને આપણને ખબર પણ નથી કે આ મહામારીનો ક્યારે અંત આવશે. જગતભરના વૈજ્ઞાનિકો એમની પાછળ લાગી રહ્યા છે અને કોરોના મહામારીનો અંત લાવવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. પણ રોજબરોજ અને જે પરિસ્થિતિમાંથી આપણે પસાર થઈ રહ્યા છીએ તો આપણને લાગે છે કે આ કોરોના મહામારીનો અંત તુરંતમાં આવશે નહીં અને કેટલો સમય લંબાશે એની પણ આપણને ખબર નથી. તો મિત્રો, આવા સમયમાં આપણી જવાબદારી શું છે? આપણે અને આપણો પરિવાર સ્વસ્થ અને નિરોગી જીવન જીવે અને ટેન્શન ફ્રી રહે, સ્ટ્રેસ મુક્ત રહે, એ આપણી જવાબદારી છે. તો એના માટેના આપણે શું કરશું? તો છેલ્લા 1.5 વર્ષથી આપણે જોઈએ છીએ કે અનેક ડૉક્ટર્સ, ભારતના ડૉક્ટર્સ, વિશ્વના ડૉક્ટરો યોગને ખૂબ જ મહત્ત્વ આપી રહ્યા છે. યોગ કરવાથી આપણે સ્ટ્રેસ ફ્રી જીવન જીવી શકીએ છીએ અને આ પરિસ્થિતિમાં ઘણા લોકો માનસિક શારીરિક તબિયતનો ભોગ બન્યા છે. તો યોગ આપણને તંદુરસ્ત જીવન જીવવામાં મદદરૂપ કરે છે. આપણા ઋષિમુનિઓ અને બધાએ આ યોગને ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્સ આપ્યું છે, એનું ખૂબ જ મહત્ત્વ બતાવ્યું છે. તો આવા સંજોગોમાં યોગ આપણને એક શ્રેષ્ઠ જીવન જીવવા માટે થઈને અવશ્યપણે મદદરૂપ થશે. યોગ આપણા સર્વની ઇમ્યુનિટી વધારે છે અને આપણને એક વિશ્વાસપૂર્વક એક જીવનમાં આગળ આવવા માટે થઈને એક તક પૂરી પાડે છે. જેમ યોગનું મહત્ત્વ છે એવી જ રીતે આપણા ડૉક્ટર્સે મેડિટેશન, ધ્યાનનું પણ મહત્ત્વ આપ્યું છે અને ધ્યાન ધરવાથી પણ ખૂબ જ માનસિક અને શારીરિક શાંતિ થાય છે અને અનેક આપણને લાભ થાય છે. યોગથી અનેક રોગોનું નિવારણ થાય છે અને એક કહેવત છે કે યોગ ભગાડે રોગ. તો યોગથી અનેક રોગોનું નિવારણ પણ થાય છે. જો યોગને આપણા જીવનમાં આપણે શરૂઆતથી જ અપનાવીએ તો આવતા સમયમાં મોટા રોગો અને મોટી મહામારીઓથી આપણે બચી શકાય છે. અને આપ સર્વેએ જોયું છે કે જેના જીવનમાં યોગ કાર્યરત હતું ને જેઓ લોકો કાયમી ધોરણે યોગ કરતા હતા એમને આ મહામારીથી ઘણા સક્ષમ બન્યા છે અને મહામારીનો બહુ સારી રીતે એ લોકોએ સામનો કર્યો છે. તો આજના આ આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ નિમિત્તે હું આપ સર્વને આપના મંગલમય જીવનની કામના કરું છું અને આપ સર્વ નિયમિત યોગ કરો એવી હું શુભેચ્છા પાઠવું છું. જો મિત્રો, નિરામય રહેશે પરિવાર તો યોગમય બનશે ગુજરાત. તો આવો આપણે સૌ સાથે મળી અને આ યોગનો સંદેશો નહીં ગુજરાતમાં, ભારતમાં પણ વિશ્વમાં ફેલાવીએ અને આપણા ગુજરાતને યોગ ક્ષેત્રે ખૂબ જ આગળ લાવીએ. તો મારી આ વાર્તાને વિરામ આપું છું. નમસ્તે, જય હિન્દ, જય ભારત. હવે હું રાજીવ કુમાર મિશ્રા, જે પ્રોજેક્ટ લાઈફ સાથે 18 વર્ષથી જોડાયેલા છે અને 25 વર્ષથી એમને જે યોગનો અનુભવ છે એ આપણને પ્રેક્ષાધ્યાન વિશે ઊંડાણપૂર્વક માહિતી આપશે. सभी को मेरा नमस्कार. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस अवसर पर इंडियन योग एसोसिएशन गुजरात चैप्टर द्वारा आयोजित इस वर्चुअल कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं. मुझे आचार्य तुलसी की एक पंक्ति याद आ रही है. उन्होंने कहा, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा. हमें राष्ट्र समाज को सुधारने की बजाय एक एक व्यक्ति को परिवर्तित करना है. आज जिस तरह से समाज में हिंसा, क्रूरता, नशा, पारिवारिक क्लेश बढ़ता जा रहा है, इसमें हमें अवश्य चिंतन करना चाहिए कि हमें व्यक्ति के मानस को किस प्रकार से परिवर्तित करना है. व्यक्ति का हृदय परिवर्तन, मनस परिवर्तन
और विचार परिवर्तन बहुत ही आवश्यक है। जब तक व्यक्ति का विचार परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक उसमें कोई भी सुधार हम नहीं देख सकते। प्रेक्षा ध्यान के द्वारा हम व्यक्ति के भीतर एक परिवर्तन ला सकते हैं और उस परिवर्तन के माध्यम से उसके भीतर जो रूपांतरण होगा वो एक आदर्श व्यक्ति के रूप में समाज में स्थापित होगा। हम एक अच्छे नागरिक की तरह समाज, राष्ट्र की सेवा करनी है और इससे भी हमारा बड़ा दायित्व है कि हमें परिवार के एक एक सदस्यों को सुखाकारी पूर्वक रखना है। प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास हमारे भीतर इसी परिवर्तन को लाता है। भाव के अंदर हम परिवर्तन लाएं, इसमें ध्यान की बहुत बड़ी भूमिका है। तो हम पहले प्रेक्षा ध्यान के बारे में थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रेक्षा ध्यान इक्ष धातु से बना है, प्र प्लस इक्ष अर्थात प्रेक्षा। प्रेक्षा का मतलब होता है देखना या जानना। अब प्रश्न उठता है किसको देखना। यहाँ पर कहा गया है कि आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना, स्वयं के द्वारा स्वयं को जानना। जब तक हम अपने भीतर अपने स्वयं के बारे में नहीं जानेंगे तब तक ध्यान घटित नहीं होगा। प्रेक्षा ध्यान की उपसंपदाओं की बात की गई है। यहाँ पर 5 उपसंपदाओं की चर्या की बात हम करना चाहेंगे। पहला है भाव क्रिया अर्थात वर्तमान क्षण में रहने की कला। व्यक्ति या तो भूतकाल की यादों में रहता है या भविष्य की कल्पनाओं में खोया रहता है, वर्तमान क्षण में वो समय व्यतीत नहीं करता, अर्थात वो वर्तमान में नहीं होता। ध्यान हमें वर्तमान क्षण में रहने की कला सिखाता है। टू लिव इन द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड मेडिटेशन। वर्तमान क्षण में रहने की जो कला है वही ध्यान है। प्रत्येक कार्य को जानते हुए करना, सजगतापूर्वक करना, यही ध्यान है। आपने देखा होगा या अनुभव किया होगा कि जब हम कोई एक क्रिया कर रहे होते तो इस क्रिया में हमारा पूरा ध्यान नहीं होता। हमारे मन में अलग अलग विचार चलते रहते हैं, लेकिन हमें उन विचारों को हटाते हुए केवल वर्तमान क्षण में रहने की कोशिश करनी है और ये तभी संभव है जब हम ध्यान का अभ्यास करें। दूसरा है प्रतिक्रिया विरति। प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन नहीं करना, प्रतिक्रिया नहीं करनी, समभाव में रहना। समभाव की स्थिति ये तभी संभव है जब हम ध्यान का गहरा अभ्यास करेंगे। तीसरा है मैत्री भाव। प्रत्येक प्राणी के प्रति हमारा भाव मैत्री का होना चाहिए और हम मैत्री भाव अपने भीतर बनाए रखें। मित भाषण और मिताहार अर्थात मिताहार का मतलब आवश्यकता से कम भोजन ग्रहण करना। यदि हम अपने पेट को एक गोलाकार स्थिति में मानते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि उसका आधा भाग आप भोजन से भर लें, अन्न से भर लें, एक भाग आप जल से भर लें और एक भाग आप खाली रखें, जिससे आपका पाचन तंत्र एकदम सुव्यवस्थित रहेगा।
और उसके बाद आता है मित भाषण, अर्थात कम बोलना। जितना हो सके उतना कम बोलने की कोशिश करना। जब हम बोलते हैं तो उससे हमारी शक्ति क्षीण होती है, शक्ति का व्यय होता है, और जब हम मौन का पालन करते हैं तो उससे हमारी ऊर्जा संचित होती है। ध्यान में हम हमारी ऊर्जा को संचित करते हैं। बहुत अच्छा कहा है कि वाणी ने कहा बह गया, मौन ने कहा रह गया। अगर हम मौन का अभ्यास करें तो ध्यान स्वयं घटित होने लगता है। इन 5 उपसंपदा की चर्याओं के साथ प्रेक्षा ध्यान का अब अभ्यास, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रेक्षा ध्यान जो आचार्य महाप्रज्ञ की देन है, एक बहुत ही सरल विधि है। कोई भी व्यक्ति इस ध्यान के अभ्यास को कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ध्यान वर्तमान क्षण में रहने की अवस्था है। पहली बात कि हमें हमारे विचारों पर नियंत्रण लाने के लिए ध्यान का अभ्यास करना है, और ध्यान के अभ्यास से एक ऐसी अवस्था का निर्माण होता है जिसे हम निर्विचार अवस्था कहते हैं। एक ऐसी अवस्था जहाँ कोई विचार नहीं। उस स्थिति तक पहुँचने के लिए हमें लंबे ध्यान के अभ्यास की आवश्यकता रहती है। ध्यान के इस अभ्यास में सबसे पहले जरूरी है कि आपके बैठने का तरीका, बॉडी पोस्चर। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसी मुद्रा, मुद्रा का अर्थ पोस्चर, जैसी मुद्रा वैसा भाव, जैसा भाव वैसा श्राव, और जैसा श्राव वैसा स्वभाव, और जैसा स्वभाव वैसा हमारा व्यवहार। अर्थात आपकी मुद्रा से आपके व्यवहार परिलक्षित होते हैं। तो हम सबसे पहले ध्यान के लिए किसी भी एक आरामदायक मुद्रा का चयन करें, जिसमें पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, जिसमें आप लंबे समय तक बिना शरीर को हिलाए डुलाए बैठे रह सकते हैं। ऐसी किसी एक मुद्रा का चयन करें। उसके पश्चात आँखों की स्थिति क्या होनी चाहिए? जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी आँखों की स्थिति बंद होनी चाहिए, वो भी बहुत ही कोमलता के साथ। आँखों पर ज़्यादा दबाव या जोर नहीं डालना है। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि आँखों को बंद नहीं करना, बल्कि बंद होने देना है। आँखों को बहुत ही हल्के से बंद कर लेना है। उसके बाद हाथों की स्थिति या तो ज्ञान मुद्रा, दिस इज पोस्चर ऑफ नॉलेज, या ब्रह्म मुद्रा, जिसे हम कह सकते हैं वीतराग मुद्रा, किसी एक हाथ की स्थिति का आप चयन करें। ध्यान की अवस्था में बहुत आवश्यक है कि आपके रीढ़ की हड्डी और गर्दन वो एकदम सीधी रहे। कई लोग ध्यान करते करते झुक जाते हैं, लेकिन इसका संबंध हमारी चेतना से है, हमारी सुषुम्ना नाड़ी से है। इसलिए ध्यान की स्थिति में हमें एकदम सीधे बैठना है। जहाँ तक हो सके आपकी करोड़रज्जु और गर्दन एकदम सीधी होनी चाहिए। अब हम ध्यान का अभ्यास शुरू करेंगे, तो किसी भी एक आरामदायक आप स्थिति में बैठ जाएं। आंखों को सहजता से बंद करें। हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा या ब्रह्म मुद्रा में किसी एक अवस्था में रखें। हाथों को घुटनों पर, अगर ज्ञान मुद्रा है तो आपके अंगूठे और तर्जनी को मिलाएं, तीनों उंगलियों को सीधा रखें और दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। और यदि ब्रह्म मुद्रा है या वीतराग मुद्रा है तो दाहिना हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे और दोनों हाथ नाभि के पास। अब आप पहला अभ्यास करेंगे जिसे हम कायोत्सर्ग कहते हैं। कायोत्सर्ग अर्थात काया का उत्सर्ग करना।
यहाँ काया का उत्सर्ग का मतलब काया के प्रति अर्थात शरीर के प्रति जो राग है, द्वेष है, हमारा ममत्व है, उसको छोड़ना। तो सबसे पहले आप थोड़ी देर के लिए कायगुप्ती का अभ्यास कीजिए। कायगुप्ती अर्थात शरीर को बिना हिलाए डुलाए एक ही अवस्था में बनाए रखें। एक प्रतिमा की भांति, जस्ट लाइक ए स्टेच्यू, एक मूर्ति की भांति शरीर को बिना हिलाए डुलाए बनाए रखने का प्रयत्न करें। अब आप बंद आंखों से अपने दाहिने पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक क्रमशः प्रत्येक अवयव पर अपनी चेतना को ले जाएं। प्रत्येक अवयव के प्रति सजग बने। अनुभव करें दाहिने पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक का पूरा भाग शिथिल होता जा रहा है, रिलैक्स होता जा रहा है। बंद आंखों से अर्थात अपने अंतःचक्षु से अपने चेतना के द्वारा दाहिने पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक क्रमशः एक एक अवयव को देखते जाइए। शिथिलता का सुझाव दें और शिथिलता का अनुभव करें। अब ये अवस्था पूरे ध्यान काल तक आपकी बनी रहे। शरीर में कोई हलचल नहीं, पूरी जागरूकता, कंप्लीट अवेयरनेस, पूरी सजगता। अब आप ध्यान का दूसरा चरण करेंगे जिसका नाम है अंतर यात्रा, इंटरनल ट्रिप। अब आप अपनी चेतना, अपने चित्त को शक्ति केंद्र पर ले जाएं और चित्त को शक्ति केंद्र से ऊपर ज्ञान केंद्र तक ले जाएं और शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र के बीच होने वाले कंपन, प्रकंपन, स्पंदनों का अनुभव करें। उसी तरह ज्ञान केंद्र से लेकर शक्ति केंद्र तक अपनी चित्त की यात्रा करें। अनुभव करें वहाँ होने वाले कंपन, प्रकंपन, स्पंदनों का। अपनी अंतर्दृष्टि को जागृत करने के लिए अंतर यात्रा का अभ्यास बहुत ही मदद रूप है, बहुत ही लाभकारी है। अब आप अनुभव कर रहे हैं शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक और ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र तक होने वाले कंपन, प्रकंपन, स्पंदनों को बस अनुभव करते जाइए पूरी जागरूकता के साथ। अब हम ध्यान का अगला अभ्यास करेंगे जिसे हम दीर्घ श्वास परीक्षा कहते हैं। अब आप अपनी चेतना को श्वास प्रश्वास की गति पर केंद्रित कीजिए। आते जाते प्रत्येक श्वास के प्रति सजग बनिए। धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास लीजिए और छोड़िए। यह अनुभव कीजिए कि जब आप श्वास लेते हैं तो आपके पेट की मांसपेशियां फूलती है और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो आपके पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती है। पेट की मांसपेशियों के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव कीजिए। पूरा ध्यान आपका श्वास के ऊपर केंद्रित बनाए रखिए। अब इस अभ्यास के बाद हम अगला अभ्यास करेंगे जिसका नाम है
ज्योति केंद्र प्रेक्षा, ललाट का मध्य भाग जिसे ज्योति केंद्र कहते हैं, यहाँ पर ध्यान का अभ्यास करना। बंद आंखों से पूर्णिमा के चांद की कल्पना कीजिए। अपनी पूरी चेतना आप पूर्णिमा के चांद को देखने में लगा दीजिए। मानसिक रूप से पूर्णिमा के चांद की अनुभव कीजिए कि पूर्णिमा के चांद की श्वेत किरणें, श्वेत रश्मियाँ आपके ललाट के मध्य भाग पर पड़ रही है। ललाट के मध्य भाग पर पूर्णिमा के चांद की श्वेत किरणों का अनुभव कीजिए। थोड़ी देर पश्चात आप ये अनुभव कीजिए कि आपका पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। श्वेत रंग की किरणें ललाट के पूरे भाग में भर गई है। मानसिक रूप से अनुभव करें कि आवेग और आवेश शांत हो रहे हैं, क्रोध शांत हो रहा है, वासनाएं शांत हो रही हैं। इस शब्दावली का आप उच्चारण करते रहें। मानसिक रूप से इस शब्दावली का उच्चारण करें। क्रोध शांत हो रहा है, आवेग और आवेश शांत हो रहे हैं, वासनाएं शांत हो रही है। अब आप इस ध्यान के अभ्यास से बाहर निकलने के लिए पुनः अपनी चेतना श्वास प्रश्वास की गति पर केंद्रित कीजिए। अपना सच में से जा मैं तिम भुए सुकपय, अर्थात स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करें। आहं सुविजा चरणं पमोक्षम, अर्थात दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए पलक बंद आंखों पर लगाएं। चेहरे का स्पर्श करते हुए अब आप अपनी आंखों को खोल सकते हैं। अब आप आराम से बैठ जाएं। अभी आपने प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास किया। आज के समय में प्रेक्षा ध्यान की प्रासंगिकता इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि आज का हर व्यक्ति मानसिक रूप से अनेकानेक समस्याओं से त्रस्त है। चिंता, तनाव, क्रोध, उद्वेग, मानसिक असंतुलन, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो व्यक्ति को परेशान करती है। और अगर एक व्यक्ति चिंतित रहता है तो उसका असर उसके पारिवारिक जीवन पर पड़ता है, इसमें कोई शंका नहीं। परिवार के दूसरे लोगों पर उसका प्रभाव होता है। तो जरूरत है कि हमें चिंता मुक्त रहने की, तनाव मुक्त रहने की, व्याधि मुक्त रहने की, और ये सभी तभी संभव है जब हम योग को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएं। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि स्वस्थ रहना और बीमार रहना ये दोनों आपके हाथ में है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो नियमित रूप से आप 1 घंटे आसन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करें।
योग के नियमों का पालन करें, आप देखेंगे कि इससे आपको बहुत लाभ होता है। एक व्यक्ति जब स्वस्थ होता है तो एक पूरा परिवार स्वस्थ होता है, समाज स्वस्थ होता है और राष्ट्र जो है वो स्वस्थ होता है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहना ये उसका मूल कर्तव्य है। हम अपने स्वास्थ्य को इग्नोर नहीं कर सकते। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास सब कुछ हासिल करने के लिए है, लेकिन हमारे पास एक ही चीज़ नहीं है, वो है वक्त, जो हम अपने स्वास्थ्य के ऊपर खर्च कर सकें। आधे घंटे का वक्त, 1 घंटे का वक्त अगर अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने में लगाया जाए तो लंबे समय के बाद इसका परिणाम बहुत ही सुखद प्राप्त होता है। परिवार के एक एक सदस्यों को स्वस्थ रखना ये हर एक परिवार के मुखिया का दायित्व है, और ये तभी संभव होगा जब हम उनको स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बताएं। इस कोरोना महामारी के दौरान लगभग सभी लोगों ने स्वास्थ्य के महत्व को समझा, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए, खान पान के प्रति जागरूक हुए, दैनिक जीवनचर्या में बहुत सारे उन्होंने परिवर्तन किए। लेकिन ज़रूरत है इन चीज़ों को बनाए रखने की। जब परिवार का हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो उस परिवार में आनंद ही आनंद आप देख सकते हैं। लेकिन जब कोई परिवार का व्यक्ति बीमार हो, रुग्ण हो, तो आप उस परिवार की स्थिति को देखें, पूरा परिवार उनके पीछे लगा रहता है, किसी तरह उनको स्वास्थ्य प्राप्त हो, इसके लिए कोशिश करते रहते हैं। तो बेहतर है कि योग को हम अपने जीवन में स्थान दें और स्वास्थ्य का रक्षण करें। ए हेल्दी बॉडी हैज़ ए हेल्दी माइंड। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का वास होता है। और अगर हम शरीर से स्वस्थ हैं और मन से बीमार हैं तो भी ये अच्छे स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। हमें शरीर से, मन से स्वस्थ बने रहना है। न केवल हमें स्वयं को स्वस्थ रहना है, अपितु हमें परिवार के हर एक सदस्यों को स्वस्थ बनाए रखना है। और जब आप योग को जीवन में महत्व देंगे, नियमित रूप से आसनों का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास और ध्यान का अभ्यास पूरे परिवार के लोग एक साथ बैठ के करेंगे, तो एक अद्भुत वातावरण, अद्भुत आनंद, अलौकिक आनंद सभी को प्राप्त होगा। योग से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य अपितु मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वास्थ्य भी प्राप्त किया जा सकता है। योग से आध्यात्मिक उन्नति, हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है। और सबसे बड़ी बात कि जब आप योग को जीवन में महत्व देते हैं तो हमारे शरीर के एक एक अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं। इंडियन योग एसोसिएशन गुजरात चैप्टर द्वारा आयोजित इस श्रृंखला में जो थीम है वो है निरोगीमय परिवार, अर्थात निरामय परिवार, योगमय गुजरात। हमें एक एक परिवार को निरामय बनाना है, स्वस्थ बनाना है और पूरे गुजरात को योगमय करना है। योग के प्रति लोगों में काफ़ी जागरूकता आई है और पिछले कुछ वर्षों में लोगों ने योग को अंगीकार किया है।
योग के द्वारा अपने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक बहुत सारी तकलीफों को उन्होंने दूर किया है। यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि योग केवल बीमारी से बचने के लिए नहीं है। कोई बीमारी हो, कोई तकलीफ हो, उसके पश्चात हम योग को शुरू करें, इसका निदान स्वरूप है। लेकिन यहाँ पर यह बात ध्यान देने की है कि शरीर व्याधि मुक्त रहे, रोग मुक्त रहे, इसके लिए योग को हमें प्रारंभ से ही, शुरू से ही महत्व देना चाहिए। जब हम स्वस्थ हैं उस समय से योग किया जाए तो बहुत लंबे लंबे समय तक हम स्वास्थ्य की अनुभूति कर सकते हैं। स्वास्थ्य का रक्षण स्वयं का, परिवार का, ये हम सभी का दायित्व है। आइए हम सभी विश्व योग दिवस के इस शुभ अवसर पर ये प्रतिज्ञा करें, ये प्रण करें कि योग को हम अपने दैनिक जीवन का एक अंग बनाएं और नियमित रूप से योग का अभ्यास कर अपने स्वयं के स्वास्थ्य का, अपने परिवार के स्वास्थ्य का हम रक्षण करें। योग जब आप करेंगे तब उसके लाभों को आप अनुभव कर सकते हैं। योग अनुभूति का विषय है, योग वर्णन का विषय नहीं है, योग व्याख्या की विषय नहीं है। योग को आप अनुभव कर सकते हैं और वो अनुभूति तभी संभव है जब आप योग के इस सागर में डुबकी लगाएंगे। मैं आशा रखता हूं कि विश्व योग दिवस के इस शुभ अवसर पर आप योग को अपने जीवन में अंगीकार अवश्य करेंगे। मैं इंडियन योग एसोसिएशन गुजरात चैप्टर द्वारा किए जा रहे कार्यों की अनुशंसा करता हूं और जिस तरह उन्होंने पूरे गुजरात को योगमय बनाने का संकल्प लिया है और उसके लिए ये प्रयत्न कर रहे हैं, वो प्रशंसनीय है। आइए आप सभी इंडियन योग एसोसिएशन गुजरात चैप्टर के साथ जुड़िए और पूरे गुजरात को योग में बनाने का ये जो भगीरथ कार्य है उसमें सहभागी बनिए। इसी के साथ मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आज का ये दिन आप सबके लिए शुभ और मंगलमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार।